A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters. We have done numbers of the numerical questions related to the income determination and the multiplier, as well as we have discussed the some chapters in which the students are facing more and more problems like balance of payment, foreign exchange rate, aggregate demand, aggregate supply and its related aggregates, what is national income, what are the different measurement of the national income, banking and so on. Okay. So from the previous 2 or 3 classes we will start the new chapter, that is income determination and the multiplier. Okay, so in this chapter we have already discussed the determination of the equilibrium at in income, output and employment level. So in which we have discussed that according to Keynesian theory that it is given by the J.M. Keynes. So according to him, the equilibrium of income, output and employment is found there where the AD, aggregate demand, is equal to the aggregate supply. Okay. So in this we all these equilibrium of the income and output and employment is discussed with the help of the two approaches. Okay. So the two approaches are, first one is determination of the equilibrium by AD and AS approach, and the determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay, so we have already discussed the determination of the equilibrium by AD and AS approach and saving and investment approach. Next topic that we have started, that is determination of the equilibrium or the point of the equilibrium level of employment. So the equilibrium level of employment is divided into 3. That is full employment level, second one is over full employment level, and third one is under employment level. So the full employment level is the situation when the actual AD is equal to the required AD. The situation where the aggregate demand curve intersect the aggregate supply curve. So AD becomes equal to the AS. Okay. So this is the situation of the full employment where the any persons who are willing and able to do work and they get the job at the existing wage rate. So this is the full employment situation. Next we have discussed the over full employment situation. So in this there is AD is equal to AS but beyond the full employment level where the aggregate demand becomes more than the aggregate supply. Okay, so here the actual demand is more than the required AD. Actual AD is more than the required AD. Next that we have started, that is underemployment level. Underemployment level simply means, so underemployment level is the situation when the actual AD is the less than the required AD. That means AD is less than the aggregate supply. Okay. So all these we have already discussed in the previous class. Next topic that we have started in the previous class, that is investment multiplier. So investment multiplier is the ratio of the change in income to the initial change in investment. So multiplier is denoted by K, that is delta y upon delta I. Okay. So K equal to delta y upon delta I. So change in income to the initial change in investment. Right. So this is the situation. Next that we have already discussed, that is relation between the multiplier and the MPC. Next we have discussed about the relation between the multiplier and the MPS. And the last topic of this chapter, that is working of multiplier. So we have started that topic but not completed. So in today's class we are going to study the, first of all, what is working of the multiplier, in which we have to discuss the forward working of multiplier and the backward working of multiplier, and the last one is characteristics of multiplier. Okay.
So all these topics that we are going to study in today's class. So from this we have completed this chapter, and in the next class we will start the new chapter of the your macroeconomics. Okay, so let's get started. So today's topic is working of multiplier. Working of multiplier. इसका इंट्रोडक्शन, सो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. सो इसका इंट्रोडक्शन हमने कल लास्ट क्लास में देख लिया है. तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और दी बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. सो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज होगा. जस्ट ऑपोजिट है बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो इनकम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्योंकि जैसे ही कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो जो चेंज इन इनकम है, इनकम भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज करेगी. क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा है कि उसकी इनकम कुछ ना कुछ जनरेट हो. तो जैसे इनकम वो इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करेगा तो इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा ही बढ़ेगी. बैकवर्ड में क्या होगा कि जैसे ही इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम कर दे रहे हैं. ठीक है, पहले के कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट को कम कर दे रहे हैं तो इनकम भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर किसी भी इकॉनमी में वर्क कैसे करता है. सो हियर द मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्क ऑन द बेसिस, फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम. इनकम, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इनकम जनरेट होगी. सो एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन. जैसे ही कोई एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है, एडिशनल इनकम जनरेट होने से वो जो कंजप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरी इनकम 50,000 से 80,000 हो रही, एडिशनल इनकम मेरी कितनी हुई, 30,000. अब ये 30,000 मेरी इनकम जनरेट हुई है, ऑटोमेटिकली मेरा कंजप्शन भी चेंज हो जाएगा. जो पहले मैं 50,000 में कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, अब मैं क्या करूँगी, उन कमोडिटी को कंज्यूम करूँगी. कैसे, क्योंकि पहले क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हुआ. अब इनकम जनरेट होगा तो कंजप्शन में भी चेंज होगा. एंड नेक्स्ट वन इज कंजप्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन दी एमपीसी. कंजप्शंस क्या होते हैं कि अगर कंजप्शन हमारा चेंज हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, एमपीसी पे. एमपीसी पे कैसे, क्योंकि एमपीसी टेल्स दैट द चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम, कि इनकम के कितना चेंज होने पे हम कंजप्शन में कितना चेंज कर रहे हैं. ये कौन बताता है, एमपीसी बताता है. ठीक है, सो एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा तो ऑटोमेटिकली एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी. हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी ना. क्योंकि कंजप्शन हम जब कर रहे हैं, कंजप्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम जनरेट हुई. अब जब हम कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उनकी इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. अब ये जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक चेंज इन इनकम इक्वल नहीं हो जाता प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट. क्योंकि मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना चेंज हुआ है.
फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेबल पढ़ेंगे कि मल्टीप्लायर बताता है कि मल्टीपल टाइम्स, कितना मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हुई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ हो रहा है, ठीक, और ये क्या है, मल्टीपल टाइम्स के क्या बताता है कि कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हुई है, तो 2 टाइम्स हो रही है, मतलब कि 4 2 जा 8, जो चेंज इन इनकम है वो कितनी हुई है, 800 रुपीज, 800 करोड़। तो ये प्रोसेस जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि जो चेंज इन इनकम है वो किसके इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करके हम लोग इसका जो भी प्रोसेस है वो उसको देखेंगे, ठीक है। So the table is like this. First of all we have to assume the additional investment. यहाँ पे हमको assume करना पड़ेगा additional investment, ठीक है। assumptions, हम यहाँ पे assumption लेंगे। assumption पहला क्या होगा, autonomous investment or the change in investment, additional investment is ₹20 करोड़, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 20 करोड़ दिया है। MPC is marginal propensity to consume, it is given 0.5, ये क्या दिया है, 0.5 दिया हुआ, ठीक है। अब एक टेबल बनाते हैं। टेबल में ये हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इसका प्रोसेस दिखाएंगे कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। 1 2 3 4, okay, so here we will take time period, delta I which is given in rupees in crore, delta Y rupees in crore, delta C it is also rupees in crore, and delta S rupees in crore, okay। सो टाइम पीरियड हम ले लेते हैं। फर्स्ट डेल्टा आई, यहाँ पे हमने क्या लिया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, 20, ओके। उसमें एक पहली लाइन थी, इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 20, वो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। तो इनकम यहाँ पे कितनी हो गई, 20 हो गई। नेक्स्ट कह रहा है एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन, ठीक है। अब कुछ भी अगर एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है तो उससे क्या होगा कि कंजप्शन में भी चेंज होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज चेंज इन कंजप्शन, और भी एडिशनल कंजप्शन क्या होगा कि डिपेंड किस पे करता है, MPC पे। MPC पे डिपेंड करने का मतलब हो जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम के कितना चेंज होने में हम लोग कंजप्शन में कितना चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक अजम्पशन ले लिया है, दैट इज MPC इज 0.5। अगर इनकम क्या हो रही है, 1 जनरेट हो रही है, 1 इंक्रीज कर रही है, तो कंजप्शन हम कितना कर रहे हैं, 0.5, मतलब उसका हाफ। 20 अगर इनकम यहाँ पे 20 है तो MPC 0.5 है, मतलब हाफ हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और हाफ हम क्या कर ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो 20 का हाफ क्या हो गया, 10 और 10, राइट। फिर कह रहा है एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट एडिशनल इनकम।
हमें पता है ये चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो हर लेवल पे सेम होता चला जाएगा। ओके, अब सेकेंड पीरियड हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड पीरियड में हमने देखा एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या करता है, इनकम को जनरेट करता है। एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट्स दी इनकम, मतलब कि 10 ये क्या हो जा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, जिसमें से अगर चेंज इन कंजप्शन इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है, एडिशनल इनकम होगी तो हम लोग कंजप्शन भी एडिशनल करेंगे। तो 10 का हाफ क्या हो गया 5, और इधर भी 5। फिर एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट्स दी इनकम, अब ये 5 क्या हो जाएगा, ये थर्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज 5 का हाफ 2.5 एंड 2.5। देन 2.5 भी आगे कंटिन्यू होगा, ये 2.5 को डिवाइड, ये फोर्थ टाइम पीरियड है, 1.25 1.25। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 5th पीरियड 6th पीरियड एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये चेंज इन इनकम इसके इक्वल नहीं हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, इसमें क्या बोला था कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक चेंज इन इनकम किसके इक्वल नहीं हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ के एंड डेल्टा आई। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो आपको पता है के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। सो के की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 1 है आपके पास, MPC की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, 1 माइनस 0.5, देन के इक्वल टू 1/0.5, के की वैल्यू क्या आ गई 2, 5 2 जा 10। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि हमें इन्वेस्टमेंट पता है 20 करोड़, के पता चल गया, इनकम हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, कैलकुलेट करना है हमें। के कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, डेल्टा आई कितना दिया है, ₹20 करोड़। सो डेल्टा वाई कितना हो गया, ₹40 करोड़। तो ये प्रोसेस जो हमने देखा है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ वो 40 करोड़ में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। 40 में जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस क्या है, इकोनॉमी में चलता रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो इकोनॉमी में ये क्या है कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये जो है आपका ऑटोनॉमस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ 40 करोड़ में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये होता है पूरा वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। अगर आपका क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करने को, तो आपको सारे जो भी उसके टॉपिक्स हैं सारा इंट्रो आपको देना पड़ेगा कि इनकम इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, change in consumption, change in consumption depends upon the MPC, additional consumption expenditure generates the income, additional income. So all these process you have to explain, and after that you have to draw a table and you have to calculate all these value change in income. So from this you will complete whole answer of this topic. Okay, so next topic है यहाँ पे आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो मैंने बोला क्या होता है, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, दैट मीन्स इट इज दी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। So the concept of investment multiplier can be explained as under। ठीक है, हम लोग इसको एक with the help of diagram explain करते हैं। This is AS, this is AD। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एडिशनल
इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है तो एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको पता ही है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज E एंड इट इज M 0. तो जैसे ही आपकी क्या होगी, एडिशनल इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी. दैट इज, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, दिस इज डेल्टा Y एंड दिस इज, ये क्या हो गया, M1, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये क्या है आपका डेल्टा I. सो कह रहा है इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E. इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E पे है, जहाँ पे क्या हो रहा है, AD1 ले लेते हैं. इट करस्पॉन्ड एट OM लेवल ऑफ इनकम एट इक्विलिब्रियम. ये इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट. हियर वी विल टेक AD एंड AS. ठीक है, OM लेवल ऑफ आउटपुट पे और इनकम पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है. सो विथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा I, जैसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया, दैट इज डेल्टा I. ठीक है, इट शुड बी डेल्टा I. ठीक है, जैसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया डेल्टा I, इक्विलिब्रियम शिफ्ट पॉइंट E टू E1. इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है. सो E1 करस्पॉन्ड टू OM लेवल ऑफ इनकम ऑफ इक्विलिब्रियम. OM1 क्या हो गया, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया है कि इन्वेस्टमेंट इतना किया गया तो इनकम क्या हो रही है, इतनी जनरेट हो रही है. सो इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम OM टू OM1. इक्विलिब्रियम क्या है, पॉइंट OM से OM1 पे इंक्रीज कर गया है. सो द एडिशनल इनकम MM1, इट इज द मोर देन दी दिस वन. मतलब कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं I और II1. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि MM1 ये ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू II1. सो MM1 इज मोर देन दी II1. क्यों, क्योंकि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर की हेल्प से कुछ मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है. तो हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, बस इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनकम हमारी इतनी इंक्रीज होगी. इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. कि इन्वेस्टमेंट के कम होने से जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी. फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड दी बैकवर्ड working of multiplier. Okay, so first of all we will make a equilibrium point. This is income, output, employment. This one AD and AS. So point equilibrium is here, AS and AD. तो बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होता है. इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से इनकम भी डिक्रीज होती है. तो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल I से वो I2 हो गई है. AD2 I2 हो गई है. अब इनकम भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी. M. So M2, right? हाँ, this point is E1. यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे बेसिकली वो ये रहा है कि जैसे ही इनकम को क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट क्या हुई, कम हुई, डेल्टा I कम हुआ, डेल्टा Y. कि इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्रॉम पॉइंट E से E2 हुई. मतलब इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम हो रहा है तो इनकम भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है. तो यहाँ पे देखिए कि इनकम इतनी डिक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इतना डिक्रीज हो जा रहा है तो इनकम में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जा रहा है. यहाँ पे मतलब MM2 क्या हो जाएगा,
मोर देन दी II2। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है तो मल्टीपल टाइम्स इनकम डिक्रीज भी होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, AD पॉइंट से AD2 हो गया। पहले हम लोग जब न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, E पॉइंट पे था, जहाँ पे इतना OI क्या था, AD था, और OM क्या थी, इनकम लेवल ऑफ आउटपुट था। इनकम था, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट था। बट जैसे ही बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो ये पॉइंट I से I2 पे शिफ्ट हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, दैट इज E1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम डिक्रीज हुआ है बट इनकम में डिक्रीज क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। तो MM2 इज मोर देन दी II2। सो दिस इज योर बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये क्या है, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Characteristics of multiplier. Okay, so for multiplier works in the both forward and the backward condition। जो multiplier होता है वो दोनों ही कंडीशन पे वर्क करता है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर है वो क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही कंडीशन पे वर्क करता है। ठीक है, सो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर शो मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि फॉरवर्ड में क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन इनकम बाई इंक्रीज इन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है। कि कुछ भी हम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है, बाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम, मल्टीपल times decrease in income by decrease in investment, right? Next one is there is positive relation between the MPC and multiplier। की जो relation होता है, relation of multiplier and MPC, ये क्या होता है, positive relation होता है। higher the MPC हायर द मल्टीप्लायर। ठीक है, जितना ज़्यादा वैल्यू एमपीसी की होगी उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर भी होगा। लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी देन लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट वन इज सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एमपीएस एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कि जो मल्टीप्लायर एंड एमपीएस में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस द लोअर विल बी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस देन हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, राइट? नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड कॉजेज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट को करता है। दैट इज इंक्रीज इन कंपोनेंट ऑफ एडी ब्रिंग्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये जैसे ही जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ एडी के वो इंक्रीज करते तो मल्टीप्लायर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो मल्टीपल टाइम्स अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी।
फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो इनकम जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं जो कंपोनेंट्स हैं एडी एग्रीगेट डिमांड के, वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड इफेक्ट करते हैं मल्टीप्लायर पे, ठीक है। जैसे इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनकम भी इंक्रीज होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी ज़्यादा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेशन होने का मतलब है कि लोग एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे। फिर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, हम कंट्री में जो गुड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो हमें इनकम जनरेशन हो रही है, इनकम जनरेशन हो रही है, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो ऑटोमेटिकली हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट इनकम जनरेट हो। So from this we have completed whole chapter of the chapter 8 of macroeconomics, that is income determination and the multiplier. Okay, so in the next class we will start some new chapter.